Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete concept of the chapter through MCQs, and topic for this lecture is P block, halogen family and noble gases. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly. So beta, in P block already nitrogen and oxygen group have been discussed in the previous videos, and this time we are here to discuss halogens. In halogens we will be having discussion on the general characteristics, their electronic configuration, their occurrence, their oxidation states, and then preparation of Cl2, how Cl2 is prepared in industry, what are the various other methods to prepare chlorine, and few compounds of halogens, particularly the interhalogen compounds, their structures, their preparation, etc. And in noble gases, the first of all, the discovery of noble gases, occurrence of noble gases, their characteristics, their configuration, their physical properties and some chemical properties. Do they form compound, and which noble gas will form compound, which will not form, and structures of the compounds formed, and few uses of noble gases. All these things are to be taken up and they will be revised through these questions. So let's start with the first question. Question number 1, halogens are all colored. Halogens colored क्यों होते हैं? Reason option में है due to absorption of ultraviolet light, due to absorption of IR light, due to absorption of visible light, और none of the above is correct. तो देखो बेटा, हमें साइड पे नोट में क्या लिख के दिया गया है कि F2 का कलर होता है पेल येलो. F2 is pale yellow in color, chlorine is yellow green, bromine is red brown, iodine is purple in color. राइट तो सबके कलर हमें याद होने चाहिए. डायरेक्ट कलर पे भी क्वेश्चन आता है. अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कलर क्यों आ रहा है हेलोजेंस में? क्या वो अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं या इंफ्रारेड या फिर विजिबल लाइट? तो हमारा आंसर है बेटा हेलोजेंस दे एब्जॉर्ब विजिबल लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम. राइट, विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे. तो एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होता है और एक कलर ट्रांसमिट होता है. जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो हमें दिखेगा. हमें ट्रांसमिटेड कलर या ट्रांसमिटेड लाइट ही दिखती है. इज इट ओके? सो विजिबल लाइट इज एब्जॉर्ब्ड. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. तो पेल येलो कलर आएगा फ्लोरीन का. फ्लोरीन एक गैस है और पेल येलो, पेल मीन्स लाइट येलो, हल्का येलो. एंड क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन इन कलर. ब्रोमीन एक लिक्विड है जो कि रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन. एंड आयोडीन इज पर्पल इन कलर. आयोडीन के बेटा क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रोमीन का लिक्विड होता है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं. उनके कलर्स ठीक से लर्न करने हैं. और रीजन क्या है कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से कलर आता है. गॉट इट? तो आपको याद ये रखना है कि जो 7 कलर्स होते हैं स्पेक्ट्रम के, उस 7 में से 1 पर्टिकुलर कलर विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कलर विल बी ट्रांसमिटेड. तो ट्रांसमिटेड कलर आपको दिखेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द हेलोजेंस आर केमिकली सिमिलर. व्हाई दे आर केमिकली सिमिलर, ये हमने रीजन बताना है. व्हाई हेलोजेंस आर केमिकली सिमिलर? ऑप्शंस आर फॉर ईच एलिमेंट एटॉमिसिटी इज 2. ये सच बात है, एटॉमिसिटी तो हर हेलोजन की 2 है, जैसे Cl2, F2, ब्रोमीन, Br2, आयोडीन I2. बट रीजन चाहिए ना. क्वेश्चन है व्हाई दे आर केमिकली सिमिलर. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बट दैट इज नॉट द रीजन. लेट्स कम टू बी ऑप्शन. देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दैट इज रॉन्ग. फ्लोरीन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का बेटा 2p बनेगा और क्लोरीन का तो 2p नहीं बनेगा, वो तो 3p बनेगा. So valence shell is having different quantum number. So B option is not correct. Let me write for bromine also. Bromine के लिए ये बन जाता है 3p5 के बाद 4p5. In this way
वैलेंस शेल इज नॉट सेम। सी नंबर पे, सी ऑप्शन में लिखा है देयर एटम्स कैन फॉर्म 7 इलेक्ट्रॉन्स, sorry, their atoms can lose 7 electrons to form ions with the electronic structure of inert gas. That is क्या ये हो सकता है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं? ये बात करेक्ट है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एवरी नोबल गैस, बट 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस मीन्स वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज टू बी गिवन, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हेलोजन्स के अंदर इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन लूज होना पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन देखो, दे ईच हैव एटम्स विच नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू फुल कंप्लीटली द आउटर मोस्ट पी सब शेल। सो एक एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए ताकि आउटर मोस्ट पी सब शेल कंप्लीट हो जाए। सो कैन आई राइट फॉर हेलोजन्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2NP5। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP5 मीन्स अगर एक भी इलेक्ट्रॉन इनको और मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी एक्वायर्ड। सो 1 more electron is needed. 1 more electron is needed to acquire the noble gas configuration. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एज अ रिजल्ट फ्लोरीन को भी चाहिए एक और, ब्रोमीन को भी चाहिए और क्लोरीन, आयोडीन, सबको। सो तभी इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स के लिए सब प्रॉपर्टी सेम क्यों है? सोडियम का प्रॉपर्टी पोटेशियम से क्यों मैच करता है? क्योंकि सोडियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम ऑल्सो वॉन्ट्स टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी सेम है, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे नीड 1 more इलेक्ट्रॉन। एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा, आउटर शेल भी आउटर सब शेल भी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन। ड्यू टू सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, दिस इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। हर ग्रुप के लिए ट्रू है ये, सब ग्रुप के मेंबर्स का प्रॉपर्टीज आपस में मैच करता है। क्यों मैच करता है? क्योंकि उनका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। अमंग द हेलोजन एसिड्स द वन विच इज वीकेस्ट। आपके पास हेलोजन एसिड दिए हैं HF, HCl, HBr एंड HI। हमें ये बताना है कि वीकेस्ट कौन है। 4 हेलोजन एसिड्स हैं, तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलोजन एसिड्स में नेम्स हैं HF, तो HF के बारे में बात करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डिसाइडिंग द एसिडिटी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो या फिर आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह दो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, गॉट इट। तो बेटा HI का बॉन्ड वीक होता है। HI हैज, याद रखना है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? बिकॉज HI हैज लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लीस्ट फॉर HI। HI हैज अ वीक बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। वीक बॉन्ड मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब जल्दी से H लूज करेगा। क्यों जल्दी लूज करेगा? क्योंकि H और I में बॉन्ड वीक है। बेटा आयोडीन इज वेरी बिग इन साइज एंड हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो एक बड़ा और एक छोटा एटम होता है तो बॉन्ड वीक बनता है, ठीक से ओवरलैप नहीं होता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड कोई पूछेगा तो हमारा आंसर HI है, बट हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें तो वीकेस्ट एसिड पूछ रहे हैं ना। तो वीकेस्ट एसिड में HF आएगा। HF इज वीकेस्ट। HF bond is a stronger bond, then you have HCl, then HBr and then HI। ये किसका सीक्वेंस लिखा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, और यू कॉल इट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर HF इज वेरी स्ट्रॉन्ग। HF स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि थोड़ा सा साइज मैच करता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, पर हाइड्रोजन और आयोडीन का बिल्कुल मैच नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट वो HI का बॉन्ड वीक है। तो HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो HF बॉन्ड डज नॉट
ब्रेक इजिली। HF बॉन्ड ठीक से जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, सो HF इज अ weak acid, or you can say HF is the weakest acid among these halogen acids। 4 halogen acid हमें दिए गए थे और weakest acid पूछा था, तो हमारा आंसर क्या बना? A option। A option is the answer। This is the weakest one। Got it? Next you have question number 4। Fourth question देखो, KF combines with HF to form KHF2। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है KHF2। इस तरह से एग्जिस्ट करता है जैसे KHF2 KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता। सो क्वेश्चन ने कहा दिस कंपाउंड कंटेन्स द स्पीसीज। इस कंपाउंड में क्या क्या स्पीसीज प्रेजेंट है? क्या इसमें K प्लस एंड F नेगेटिव एंड H प्लस है, या K प्लस F नेगेटिव एंड HF नेगेटिव? सी ऑप्शन में दिया है K प्लस एंड HF2 नेगेटिव आयोन्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि KHF2 व्हेन इट विल आयोनाइज इट विल ब्रेक टू गिव 2 आयोन्स। कौन कौन से 2 आयोन्स आएंगे? एक आएगा K प्लस, एक आएगा HF2 माइनस, राइट। तो HF2 माइनस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, H बॉन्डिंग इज देयर। Due to that H bonding, this I have written 1 HF, right? तो फिर ये F के साथ, नेबरहुड के F के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिकॉज F नेगेटिव है और HF का ये जो H है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है HF इज नॉट ए, इट इज हाईली पोलर बॉन्ड, राइट। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइम फ्लोरीन की तरफ स्पेंड करते हैं। एज ए रिजल्ट पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर हाइड्रोजन क्या करती है, नेबरहुड का जो फ्लोरीन है उसके साथ इसने जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेना है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फिर HF2 माइनस एग्जिस्ट करने लगता है। HF2 माइनस आयोन एग्जिस्ट, सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की ज्यादा होती है, और फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये वाला जो ऑलरेडी प्रेजेंट था बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है। एक HF में कोवलेंट बॉन्ड, बट नेबरहुड वाले के साथ जब जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये बातें याद रखनी है। तो KHF2 में कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं? एक K प्लस और दूसरा HF2 माइनस। आई मीन टू से सी ऑप्शन इज द आंसर। इसी तरह अगर KHCl2 की बात करोगे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि HCl2 माइनस आयोन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन होता है एटम शुड बी ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। एज अ रिजल्ट क्वाइट स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है यहाँ, एंड वी हैव existence of K plus and HF2 negative ion। as a result आपका आंसर बना C option। coming to the next, halogens में important point था ये वाला। आगे देखो, in the reaction I2 plus I negative is giving I3 negative। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर लुईस एसिड कौन है ये ढूंढना है। लुईस एसिड क्या I2 है? A ऑप्शन में लिखा है I2, बी में लिखा है I नेगेटिव, सी में I3 नेगेटिव, एंड देन नन ऑफ दीज। तो देखो बेटा, लुईस एसिड क्या होता है पहले तो ये मालूम हो, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लुईस एसिड मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो जब रिएक्शन हो रहा है I2 के पास I नेगेटिव आ रहा है, I नेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो I2 प्लस I नेगेटिव में रिएक्शन होगा
ये है लुईस एसिड एंड I नेगेटिव इज लुईस बेस, बोथ ऑफ देम विल कंबाइन। जब वो कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव इज प्रोड्यूस्ड। एज अ रिजल्ट एसिड बेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब लुईस एसिड कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करने हैं, बट कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन एन एलिमेंट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुईस एसिड या तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल होता है, लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल, या फिर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन भी लुईस एसिड हो सकता है। तो यहां आयोडीन तो ना तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। तो एक और कंडीशन, मॉलिक्यूल और एटम हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। आयोडीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। एज अ रिजल्ट जब I नेगेटिव आके इलेक्ट्रॉन देगा तो आयोडीन अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गए तो हम उसको लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है क्योंकि फ्लोरीन का तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 2p पे खत्म हो जाता है। ऐसे होता है ना, फ्लोरीन इज 2p वैलेंस शेल। फॉर ब्रोमीन, पहले क्लोरीन is 3p, then bromine it is 4p, then iodine it is 5p। ठीक है, तो इन सब के पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, बट नो d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद फ्लोरीन्स, नो एम्प्टी d ऑर्बिटल। बाकी सबके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं। एज अ रिजल्ट वो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जब I नेगेटिव, वैसे तो I2 का ऑक्टेट कंप्लीट है पर I नेगेटिव आएगा तो भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कहाँ रखेगा, अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको लुईस एसिड कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको लुईस बेस कहते हैं। एज अ रिजल्ट आपके क्वेश्चन का आंसर बना ए ऑप्शन, I2 इज लुईस एसिड। सिंपल क्वेश्चन, लुईस एसिड लुईस बेस डेफिनेशन किसी भी चैप्टर में आ जाता है, बी केयरफुल। Coming to the next now, question number 6. Sixth question. Which of the following is used in the preparation of chlorine? क्लोरीन की प्रेपरेशन के लिए कौन सा रिएक्शन यूज होता है? Only MnO2, only KMnO4, both MnO2 and KMnO4, or either MnO2 और KMnO4? तो देखो बेटा, क्लोरीन प्रेपरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलोजन्स के अंदर। किस किस तरीके से क्लोरीन बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट राइटिंग द रिएक्शन फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन। प्रेपरेशन ऑफ Cl2 में हमें कौन कौन से रिएक्शन देखने हैं? MnO2, इसको बेटा HCl से रिएक्ट कराते हैं और बन जाता है MnCl2 प्लस वाटर एंड Cl2, प्लस वाटर एंड Cl2। ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट है, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। याद रखो MnO2 में अगर HCl डालो तो ये लेबोरेटरी मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरीन। तो 4 एटम आपके पास क्लोरीन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, एक मैंगनीज का है। इन दिस वे रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो एक तो ये बहुत फेमस मेथड है टू प्रिपेयर क्लोरीन, दिस इज नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आता है KMnO4 भी यूज कर सकते हैं। KMnO4 के अंदर भी अगर हम HCl डाल दें, इवन देन प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से भी क्लोरीन बनती है। तो अगर मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करना है तो देयर इज ए नीड ऑफ 2K, there will be 16 of HCl, आपके पास आ जाएगा 2KCl 2MnCl2। अब वाटर के 8 मोल्स आएंगे एंड यू विल गेट 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। इन दिस वे आपका रिएक्शन बैलेंस्ड होता है। KMnO4 MnO2 दोनों HCl के साथ रिएक्ट करने पे क्लोरीन देते हैं। ये आपका प्रोडक्ट बन रहा है Cl2। रिएक्शन ठीक से लिखना आना चाहिए हर स्टूडेंट को,
ठीक है, ये 2 मोल आएगी क्लोरीन, यहाँ नहीं, वो ऑलरेडी बैलेंस था, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो रिएक्शन आपको लिखना सीखना पड़ेगा, MnO2 से कैसे बनता है और KMnO4 से कैसे बनता है। इवन पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, हम क्वेश्चन पे बाद में आ रहे हैं, हम पहले क्लोरीन की प्रेपरेशन को रिवाइज कर रहे हैं। सो K2Cr2O7, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी अगर HCl से कंबाइन करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है KCl एंड क्रोमियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, आफ्टर दैट वाटर एंड देन Cl2। तो रिएक्शन लिखना इजी है, सिर्फ ये याद रखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और HCl लिया, फिर KMnO4 अगर ले रखा है रिएक्टेंट में तो MnCl2 बनेगा, अगर K2Cr2O7 ले रखा है तो फिर KCl के साथ साथ क्रोमियम क्लोराइड भी बनेगा। इसी तरीके से बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ऑक्सीजन प्रेपरेशन इज डीकन्स प्रोसेस, वेरी फेमस। डीकन्स प्रोसेस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है। डीकन प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, HCl को यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, Cl2 गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड CuCl2 एंड हाई टेम्परेचर 673 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। सो इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन इज डीकन्स प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस इस क्वेश्चन में नहीं पूछे हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली हमें पता होने चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में क्लोरीन प्रेपरेशन में ये आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ने बोला था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन हम क्या यूज करते हैं। सी ऑप्शन देखो, क्या हम बोथ KMnO4 एंड MnO2 टिक कर सकते हैं? नहीं बेटा, दोनों एक रिएक्शन में यूज नहीं होते, ईदर MnO2 और KMnO4, राइट। सो आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन है इसके ऊपर तो मोल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है। रिएक्शन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको बस ये कहेंगे MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड। तो पहले बैलेंस्ड रिएक्शन खुद लिखना है, उसके बाद आप मोलर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सो रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट टू बी लर्नड। फर्स्ट रिएक्शन हो सकता है आपने मोल के न्यूमेरिकल करते हुए देखा भी हो अपने प्रीवियस ईयर में 11th सिलेबस में। इज इट ओके? सो प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डीकन प्रोसेस भी था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, यू आर गिवन HF, HCl, HBr, HI एंड HCl, 4 चीजें दी हैं, चारों हेलोजन एसिड दिए हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, कैसे देखेंगे? उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, सिर्फ HF में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और किसी में भी नहीं, ओनली HF exhibits H बॉन्डिंग। सिर्फ बेटा HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए और उसका साइज भी छोटा होना चाहिए। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन इज ऑल्सो गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बट उसका साइज बड़ा हो जाता है। बिग साइज ऑफ एटम में डेल्टा नेगेटिव फिर स्प्रेड हो जाता है। सो फॉर H बॉन्डिंग क्या क्या कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए? कंडीशंस आर, नंबर 1 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड नंबर 2 हमें क्या चाहिए? स्मॉल साइज ऑफ द एटम। अगर साइज स्मॉल नहीं होता है, बिग साइज हो जाता है, तो डेल्टा नेगेटिव फिर बिगर एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, एज अ रिजल्ट फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सिर्फ HF में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, तो HF का तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट आएगा, मतलब आंसर A या B ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाकी HBr, HCl। अब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, HCl, HBr, HI, दे डोंट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके अंदर फिर कैसी इंटरेक्शन है बेटा? ये जो HI है, HBr है, इनका इंटरेक्शन साइज पे डिपेंड करेगा। साइज बड़ा हो रहा है तो इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी। HCl हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अकेला ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हाईएस्ट HF है। हाईएस्ट तो हर बच्चा टिक कर देता है क्योंकि स्टूडेंट्स को याद है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है HF में,
पर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है उनमें फिर क्या इंटरेक्शन है, उनमें बेटा वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं। तो वंडरवॉल इंटरेक्शन साइज पे डिपेंड करती है। HI हैज हायर molecular size, higher molecular mass and molecular size both are big for HI. Therefore, boiling point is also high. Therefore, boiling point is high for HI. तो आपके पास जो आंसर बनेगा उसमें पहले HF आएगा, उसके बाद आएगा HI, फिर बेटा आएगा HBr, जैसे जैसे मास कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और लास्ट में HCl। HF में मॉलिक्यूलर मास नहीं देखना, HF में तो H बॉन्डिंग हो गई। एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर बना कौन सी ऑप्शन में? ए ऑप्शन। बी केयरफुल, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? HCl का। लीस्ट वाले पे क्वेश्चन आता है और आप HF का हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भी दिखा सकते हो। HF हैज zigzag chains। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद zigzag chains बन जाती हैं। H और F लिख के उसके बाद आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड दिखाओ, फिर ये H और फिर ये F, इस तरीके से आप H बॉन्डिंग दिखाओगे। HF की हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बना दी है, zigzag chains बन रही हैं। ये जो डॉटेड दिखाया वो H बॉन्ड है, जो सॉलिड दिखाया वो बेटा कोवलेंट बॉन्ड है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला कोवलेंट बॉन्ड। इन दिस वे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि 4 हैलोजन एसिड दिए और बॉइलिंग पॉइंट सीक्वेंस देना है। हमारा आंसर है ए ऑप्शन। हाईएस्ट इज फॉर HF, लीस्ट इज फॉर HCl। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। 4 हैलोजन्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर बताना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस एटम के ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एडेड इनटू द एटम, जब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? तो जनरली हम सोचते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगा, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल किसका है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा फ्लोरीन नहीं होता आंसर, इट इज क्लोरीन। इन द पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन। ये आपने 11th सिलेबस में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। यहाँ हेलोजन फैमिली पी ब्लॉक के अंडर फिर से आ रहा है, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात यह है कि फ्लोरीन की हाईएस्ट क्यों नहीं होती? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का वैलेंस शेल ये कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5 और क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन है 3s2 3p5। तो ये जो है 2p5 इट इज स्मॉल साइज। 2p मतलब स्मॉल साइज्ड p सबशेल। तो पहले ही छोटे से p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अनदर इलेक्ट्रॉन वी आर ट्राइंग टू ऐड, सो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल बी देयर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगी, इसलिए फ्लोरीन जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी, या कह लो कम एनर्जी रिलीज होगी। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन की जगह पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की नहीं क्लोरीन की हो जाती है। ठीक है, कीप इन माइंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज फॉर क्लोरीन। तो इनकी वैल्यूज भी हैं बेटा, क्लोरीन का और फ्लोरीन का वैल्यू आप देखो 349 किलो जूल पर मोल। 1 मोल क्लोरीन एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, 1 मोल के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, क्योंकि हर हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये वैल्यू है फ्लोरीन का -328 किलो जूल पर मोल। तो हाईएस्ट इज फॉर क्लोरीन। माइनस का मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। और फिर ब्रोमीन और
आयोडीन के वैल्यूज नोट करिए। ब्रोमीन का वैल्यू -324.6 अगेन इन किलोजूल पर मोल, एंड फॉर आयोडीन -295.2। नो नीड टू लर्न द वैल्यूज, बट फ्लोरीन क्लोरीन का कंपैरिजन देखना जरूरी है। हाईएस्ट क्लोरीन की वैल्यू है। तो अब हम आंसर ढूंढते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन में आंसर बेटा ए ऑप्शन बनेगा। यू आर गिवन हाईएस्ट इज फॉर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। आपके पास कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, 4 हेलोजन्स हैं ए और बी ऑप्शन में, डी में भी हेलोजन है और सी में हेलोजन एसिड है। देखो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट तो हमें दे दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ने ऑप्शन, F2 का ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आगे दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो भी F2 का ऊपर दिया है। फिर एसिडिक करेक्टर HI, HBr, HCl, HF एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गिवन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ठीक है, फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है। एसिडिक करेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस किया था, HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्योंकि HI एक वीक बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ऑल्सो करेक्ट, F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होता है। F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। F2 is the best oxidizing agent among 4 halogens। तो आपके पास अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर देखो, ये गलत है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये करेक्ट है, क्योंकि एक रेगुलर ट्रेंड दिया है, पहले F2 दे दिया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, होता क्या है, F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाईएस्ट नहीं होता। F2 हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन F2 बिकॉज इन फ्लोरीन FF में क्या क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज लोन पेयर रिपल्शंस आर देयर। लोन पेयर रिपल्शंस इन F2, सबके अंदर लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हर हेलोजन पे हैं। फ्लोरीन पे हैं तो क्लोरीन पे भी तो हैं, पर Cl का बिगर साइज होता है, वहां बिग साइज की वजह से उतना रिपल्शन नहीं होता जितना आपके पास रिपल्शन दिखेगा F2 में। ये देखो मैंने 3 लोन पेयर लगा दिए दोनों फ्लोरीन्स के ऊपर, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। दिस बॉन्ड ब्रेक्स इजिली, एज अ रिजल्ट बेटा इसको सुपर हेलोजन कहते हैं F2 को। फ्लोरीन के तो एकदम वायलेंट रिएक्शन होते हैं, कंट्रोल भी नहीं होता है इसका रिएक्शन। तो हमारे पास फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अंदर F2 टॉप पे नहीं होता, क्लोरीन होता है टॉप पे। इट इज क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर F2 और फिर I2। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम हो या आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो। जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि F2 का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आंसर है नहीं, F2 लास्ट में तो नहीं गया बट I2 से पहले आ गया। सो Cl2 स्ट्रांग बॉन्ड, उसके बाद Cl2 के बाद Br2, फिर F2, फिर I2। I और I दो आयोडीन एटम में वीक बॉन्ड बनता है क्योंकि बिग साइज एटम है तो ओवरलैप ठीक से नहीं होगा, सो इट विल बी अ वीकर बॉन्ड। एज अ रिजल्ट आपको क्वेश्चन ने बोला था विच वन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी, हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन गलत है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर यहां बॉटम पे लिख दिया है। सब स्टूडेंट्स ने ये सीक्वेंस लर्न करना है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है कि 4 हेलोजन्स को अरेंज करो इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। What are the products expected from disproportionation of hypochlorous acid? Hypochlorous acid क्या होता है? HOCl। HOCl को HClO भी लिख देते हैं, एक ही बात है। This is called as hypochlorous acid। ठीक है, तो hypochlorous acid स्टेबल नहीं होता, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो क्या रिएक्शन है, हम सब ने लर्न करना है। HClO
विल डिस्प्रपोर्शनेट, डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब ऑक्सीडाइज भी HClO3 हो रहा है और रेड्यूस भी HClO3 का ही मॉलिक्यूल हो रहा है। तो इस तरीके से ये आपका बेटा बैलेंस्ड रिएक्शन है, आप चेक कर सकते हो। ये डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, 3 मोल से 2 + 1 बन गए। और ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू चेक करते हैं, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1, क्लोरीन का HCl में -1, HClO3 में +5, ठीक है। So when same atom gets oxidized and same atom gets reduced, it is called as disproportionation. Disproportionation means self oxidation, self reduction. तो एक मॉलिक्यूल +1 से -1 जा रहा है, एक मॉलिक्यूल में क्या चेंज आ रहा है? इट इज चेंजिंग फ्रॉम +1 to -1 and the other one is changing from +1 to +5. एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है क्लोरीन का, एक गेन कर रहा है, तो ये रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? जो +1 से +5 जा रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जो गेन कर रहा है वो +1 से -1 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। तो आपके पास आंसर क्या बना? डी ऑप्शन। D option is the answer. HCl and HClO3 they will be produced. Important था question. Coming to the next, solubility of iodine in water can be increased by. आयोडीन का वाटर में solubility को increase करना है तो क्या करें? क्या हम क्लोरोफॉर्म ऐड करें या KI या कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम थायोसल्फेट? These are the options. Solubility has to be increased. तो देखो बेटा ये रिएक्शन होता है I नेगेटिव एंड I2, KI के अंदर I नेगेटिव प्रेजेंट है, तो आयोडीन आपके पास अवेलेबल है, आयोडीन का आप सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, ये कंबाइन करते हैं और क्या बन जाता है? I3 नेगेटिव आयोन। दिस इज अ पॉलीहेलाइड आयोन। नोट में भी लिखा है कि पॉलीहेलाइड आयोन एग्जिस्ट करते हैं। आयोडीन I3 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब ये KI से कंबाइन करेगा। KI में से निकल रहा है ना ये I नेगेटिव, इट इज कमिंग फ्रॉम KI। सो I नेगेटिव एंड I2 विल कंबाइन, I3 नेगेटिव विल बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरीके से और हेलोजन भी कंबाइन करते हैं, जैसे कि हमारे को यहाँ क्या क्या दिया है? I3 नेगेटिव के साथ साथ Cl3 नेगेटिव, ICl2 नेगेटिव, IBr2 negative, even ICl4 negative. These polyhalide ions are existing. मतलब 2 हेलोजन, 3 हेलोजन, 4 हेलोजन कंबाइन हो जाएंगे प्रॉपर। इनका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। आप ज्योमेट्री कैलकुलेट भी कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखा हुआ है। अदरवाइज आगे आगे और क्वेश्चन भी आएंगे। इसी तरीके से ये भी रिएक्शन होता है। वी हैव ICl, ICl is given to us. It will combine with Cl2. तो यू विल गेट ICl3 नेगेटिव। इस तरीके से कंबाइन होके नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा बिकॉज इट वाज न्यूट्रल। I भी है ना, या तो ऐसे लिखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज लिखना है फिर I नहीं लिखना। यू विल राइट Cl नेगेटिव प्लस Cl2 टू गिव Cl3 नेगेटिव। इज इट ओके? तो 2 हेलोजन, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव चार्ज कंबाइन करेगा, पॉलीहेलाइड आयन बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन था सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग। आंसर इज बाय एडिंग KI। KI ऐड करने से हमारे पास ये रिएक्शन होता है, ये हम हाईलाइट कर देते हैं, ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि I2 I नेगेटिव से कंबाइन करेगा, I3 नेगेटिव बनेगा। I नेगेटिव कहां से आ रहा है? KI से आ रहा है। सो बी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ। कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं ClF3, CCl4, XeOF4, इनकी शेप्स निकालनी है। तो ऑप्शंस में ट्रायंगुलर पिरामिडल दिया है, फिर टेट्राहेड्रल दिया है, टी शेप दिया है। तो ऑप्शंस को बाद में देखते हैं। पहले देखो बेटा साइड पे जो नोट है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ClF3 एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। और भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के शेप्स दे रखे हैं, BrF3 का, BrF3 के बाद BrF5 का एंड IF7, इनके ये शेप्स हैं। दिस इज पेंटागनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, बेंट टी शेप्ड। तो ClF3 सबसे पहले
इंटर हेलोजन कंपाउंड होते क्या हैं? 2 हेलोजन, 3 हेलोजन या 4 हेलोजन कंबाइन करते हैं, हेलोजन हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाए, उसको इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। ClF3 टी शेप्ड होता है। किसी का भी ज्योमेट्री हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था, यहां से निकालते हैं। N इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, क्लोरीन सेंट्रल एटम है, उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरीके से ClF3 के लिए आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। sp3d जब होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनता है, बट उसके लिए 5 सराउंडिंग एटम चाहिए। तो 5 सराउंडिंग एटम तो है नहीं, 2 जगह पे लोन पेयर आएगा। 2 लोन पेयर से ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरीके से क्लोरीन और फिर 3 फ्लोरीन ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बेंट शेप बनता है क्योंकि लोन पेयर है ना 2। ये जो लोन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देंगे। ये देखो मैं टिक कर रही हूं, ये वाला लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है, तो वो एकदम एंगल 90 डिग्री नहीं रहता है, तो बेंट हो जाता है। टी तो है, देखो रेगुलर ऐसे होता तो टी बोला जाता ऐसे, बट एग्जैक्ट वर्ड टी की जगह बेंट टी शेप बोल दिया जाता है, राइट। सो वी हैव दिस मॉलिक्यूल ClF3 is bent T-shaped. Is it okay? After this हमारा मॉलिक्यूल था CCl4 और XeOF4। अब CCl4 को भी उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। CCl4 बेटा sp3 आएगा, sp3 का मतलब टेट्राहीड्रल है। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री ऐसे ड्रॉ करनी है। This is the central carbon and 4 chlorines are attached to it. Next molecule given was XeOF4. XeOF4 में hybridization calculate करेंगे। Central atom xenon, xenon के valence electrons 8, monovalent atom लेना है, फॉर्मूले में divalent नहीं लेना, ऑक्सीजन को नहीं लेना। 4 fluorines are the monovalent atom, you will get 6 आने से ये बना sp3d2। sp3d2 मीन्स आपके पास ऑक्टाहीड्रन आना चाहिए, बट उसके लिए तो 6 एटम्स होते हैं ना, तभी ऑक्टाहीड्रन बनता है। तो एक जगह पे लोन पेयर आएगा, बाकी फ्लोरीन्स और ऑक्सीजन्स को आप अटैच करोगे। ये सिचुएशन है, हेयर इज द लोन पेयर। इन दिस वे ये ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर पिरामिड। वी कैन राइट हेयर दिस इज स्क्वायर पिरामिड व्हेन यू हैव 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो ऑक्टाहीड्रन नहीं बोला जाता, स्क्वायर पिरामिडल बोला जाता है। तो आंसर देखो, आंसर हमारा 12th क्वेश्चन का किस ऑप्शन में आ रहा है? टी शेप्ड is ClF3, CCl4 is tetrahedral and square pyramidal is the last one XeOF4। आपका आंसर बना बी ऑप्शन। थिंग्स आर क्लियर। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस थी। ये जो फॉर्मूला गिवन है इससे आप किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड का ज्योमेट्री कंफर्म कर सकते हो। ये जो वैल्यूज दी हैं टेबल में, IF7 अपने आप देखोगे, अगर IF7 का कैलकुलेट करोगे तो वो बेटा sp3d3 आएगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट करो सो वो बनेगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। BRF5 कैलकुलेट करोगे तो sp3d2 आएगा। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, उनके प्रेपरेशन, उनकी ज्योमेट्रीज पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। Coming to the next, the halogen which is most easily reduced is, 4 हेलोजन्स में F2 जल्दी रेड्यूस होगा, या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। देखो हेल्प के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा ना। रिड्यूस्ड मींस क्वेश्चन कह रहा है विच इज इजीली रिड्यूस्ड, आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गेन, रिडक्शन मीन्स व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लास्ट वाले में दिखाया जा रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो, कोई भी हेलोजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोडक्ट में वो X नेगेटिव बनता है। तो देखिए अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, ये 3 चीजों का रिजल्टेंट होता है। नंबर 1, हेलोजन F2 होगा या Cl2 होगा, उसको ब्रेक करना है। पहले स्टेप में डिसोसिएशन एनर्जी, मैं उसको D लिख रही हूं, डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरे में इलेक्ट्रॉन गेन होना है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तीसरे के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी है,
ये बेटा हाइड्रेशन एनर्जी, और सेकंड वाला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको डेल्टा एच ईजी लिखा जाता है। सबकी वैल्यूज गिवन है। पूरा टेबल में फिर से अगर डिस्क्राइब करूं तो आपके पास F2 है, क्या ये जल्दी से रेड्यूस होगा या Cl2 या Br2, हमें ये देखना है। सबसे पहली बात तो F2 के बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करके हम एटम तक पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन का गेन। अभी गैस फेज में है फ्लोरीन, पहले मॉलिक्यूल था, अब एटम बन गया, गैस फेज में ही है। अब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ये F नेगेटिव बना। इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है यहां गिवन है, फ्लोरीन के केस में ये और क्लोरीन के केस में ये। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गिवन। नेक्स्ट वी आर गिवन 2 रिएक्शन होने के बाद थर्ड में बेटा अब हाइड्रेट होना है। याद रखो, रिडक्शन के लिए आपको 3 चीजें कंसिडर करनी होती हैं। अब F नेगेटिव जो गैस वाला है, अब ये इंटरेक्ट करेगा वाटर से। रिडक्शन पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। वाटर चाहिए, एक्वस मीडियम में होता है, तो F नेगेटिव एक्वस बनेगा। ये है हाइड्रेशन एनर्जी। 3 चीजों के रिजल्टेंट के बाद डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन इजिली गेन कौन कर रहा है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कौन कौन से 3 पैरामीटर देखने हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी। तो रिजल्टेंट तो बाद की बात है, पहले हम इंडिपेंडेंटली देखें। हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर आओ। कैन आई से हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन का बहुत हाई है क्लोरीन के कंपैरिजन में। जब फ्लोरीन F नेगेटिव को हाइड्रेट किया जाएगा, छोटा साइज है F नेगेटिव का, इसलिए ज्यादा वाटर सराउंड करेगा, तो F नेगेटिव का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई है, क्लोरीन का कम है। कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरीन हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हाई क्यों है? क्यों हाई है? क्योंकि वो स्मॉल साइज का होता है, तो मोर वाटर विल सराउंड एंड एज अ रिजल्ट मोर बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। आयोन डाइपोल बॉन्ड बनना है तो ज्यादा जल्दी से हाइड्रेट होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारे को तो तीनों का रिजल्टेंट देखना है। तो रिजल्टेंट में मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय फ्लोरीन देन बाय क्लोरीन। तो हाइड्रेशन एनर्जी से रिजल्ट आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन तो क्लोरीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का हाई था, फिर भी हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोरीन का हाई होने से नेट आंसर फ्लोरीन का मोर नेगेटिव आ रहा है। सो मोर नेगेटिव मींस मोर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन अप बाय फ्लोरीन इन एक्वस मीडियम। आपका आंसर बनता है विच इज इजिली रिड्यूस्ड, आंसर इज ए ऑप्शन। ये चीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में भी पढ़ते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ते हैं, जो EMF सीरीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, उसमें बेटा बॉटम पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। सो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज F2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो F2 आपके क्वेश्चन का आंसर है। मोस्ट इजली रिड्यूस्ड हैलोजेंस के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ इन क्वेश्चंस में आ रहे हैं। Coming to the next question, question number 14. You are given some acids. Following acids are arranged in order of decreasing acid strength. Decreasing order of acid strength देना है आपको। 3 एसिड दिए हैं, ClOH, BrOH एंड IOH। इनको बेटा हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं या हाइपोहेलस एसिड आप कह सकते हो। ClOH, ये ज्योमेट्री, दिस इज BrOH। नेक्स्ट वी हैव IOH। आयोडीन को OH से जोड़ देना है। आयोडीन इज अटैच्ड विद OH, राइट। तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ज्यादा? फ्लोरीन तो दिया नहीं हमें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिए हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का माइनस आई स्ट्रांग होता है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींच तो ब्रोमीन भी रहा है, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बट क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेगा कंपैरिजन में। रिलेटिव कंपैरिजन देखो, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड से भी विड्रॉ हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से विड्रॉ कर लेगा।
रिजल्ट क्या निकलेगा, हाइड्रोजन को बाहर जाना पड़ेगा, H विल गो आउट इजिली, एज अ रिजल्ट HOCl, ये ClOH जो लिखा है ये HOCl ही है, इस तरह से HOCl और ClOH एक ही बात है, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइपोब्रोमस देन हाइपोआयोडस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने डिसाइड किया एसिडिक करेक्टर, जो भी जल्दी H लूज करता है वही एसिड होता है, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो एसिडिटी ऑर्डर देना था, ए ऑप्शन आंसर बन रहा है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करेगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा करेगी आयोडीन से। तो 1 इज मोर एसिडिक देन 2 देन 3। कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following is correct for cesium CsBr3? It is a covalent compound, it contains cesium plus 3 Br minus और cesium plus 1, cesium पे +1 रहेगा इसके अंदर या Br3 माइनस, वो देखना है। देखो बेटा, cesium CsBr3 हमें गिवन है, ये जब ब्रेक होगा इस तरीके से ब्रेक होगा, Br3 माइनस। Br3 माइनस एक पॉलीहेलाइड आयन है, अभी अभी हमने इंटरहेलोजन कंपाउंड्स और पॉलीहेलाइड आयन्स देखे थे, जैसे I3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, Cl3 नेगेटिव करता है, ऐसे Br3 नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो Br3 नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, सीजियम +1 है, इस तरह से रिएक्शन होता है ना, Br2 विल कंबाइन विद Br नेगेटिव एंड यू विल गेट Br3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट हमारा आंसर बनता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन ने कहा था विच वन इज करेक्ट, कीप इन माइंड दिस इज प्रेजेंट Br3 नेगेटिव आयन, ये इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि अल्कली मेटल है ना सीजियम, तो उस पे +3 नहीं आता। अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज हैविंग 1 यूनिट चार्ज, दे लूज 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको कौन कौन से एसिड दिए हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। कीप इन माइंड HClO4 जो होता है उसका नाम परक्लोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज परक्लोरिक एसिड। HClO3 is chloric acid, then HClO2 is क्लोरस एसिड, फिर आएगा हाइपोक्लोरस एसिड HClO, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये 4 एसिड हैं, आपको गिवन, इनके नाम तुम्हें याद रखने हैं, इनका आपको एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। HClO4 में बेटा 7 आएगी, आप X लेके कैलकुलेट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। उसके बाद आपको एसिडिटी के लिए क्वेश्चन ने कहा था ना, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो जितना पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर हाई होगा उतना एसिडिटी बढ़ेगी। ये स्ट्रक्चर है ClOH एंड देन 3 ऑक्सीजन्स आर अटैच्ड थ्रू डबल बॉन्ड, tetrahedral structure HClO4, very high positive charge on chlorine। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है क्लोरीन से, क्लोरीन फिर क्या करेगा, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू कर देगा। क्लोरीन, ये देखो ये था ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से विड्रॉ होंगे, इधर को आएंगे, क्योंकि क्लोरीन पे हाई पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से वो विड्रॉल अगले अगले बॉन्ड में ट्रेवल करता है, सो H का लॉस इजी हो जाता है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड इज HClO4। HClO4 जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कीप इन माइंड। तो ClO4 नेगेटिव इज वीकेस्ट बेस, कभी कभी बेसिसिटी पे भी ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, इस तरीके से याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका है HClO4 और वीकेस्ट एसिड है HClO। आंसर बना एसिडिटी का ए ऑप्शन। गॉट इट? परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने HClO4 का। इसी तरह अगर HClO3 का कभी बनाना हो
तो आप बस एक जगह पे लोन पेयर लगा दोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे। दिस इज फॉर HClO4। ऑक्सो एसिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन आपका हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16। कमिंग टू द नेक्स्ट, आगे देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लोएस्ट फॉर। आपके पास अब नोबल गैसेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 4 नोबल गैसेस गिवन है, हीलियम, नियॉन, जीनॉन एंड आर्गन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा? लोएस्ट बताना बेटा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 4 हेलोजेंस में हम क्या करेंगे? वंडरवॉल इंटरेक्शंस देखेंगे। वंडर वॉल्स इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन ऑल नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस तो नॉन पोलर हैं, कोई बॉन्ड बना नहीं सकते, कोई पोलैरिटी नहीं है, बहुत वीक इंटरेक्शन एक एग्जिस्ट करती है जिसको वंडरवॉल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो वंडरवॉल इंटरेक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन साइज, दे आर डिपेंडेंट अपॉन मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर मास। किसका साइज कम है? हीलियम का सबसे कम। फर्स्ट मेंबर ऑफ नोबल गैसेस 18th ग्रुप इज हीलियम। सो सबसे कम साइज है, कम मास है, एज अ रिजल्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट आएगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals interactions. Van der Waal interactions are least in case of helium. So उसका melting point भी कम और उसका अगर boiling point देखना है तो वो भी कम। Got it? हीलियम तो वैसे गैस है, रूम टेम्परेचर पे आप प्रेशर लगा के वेरियस कंडीशंस दे के उसको लिक्विफाई कर सकते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर कैसे देखते हैं? सबका शेप देखना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। XeO4, XeO4 बेटा ये आएगा sp3, दिस वन विल बी sp3। हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं n इज इक्वल टू हाफ ऑफ v प्लस m माइनस c प्लस a। ये रिलेशन यूज करेंगे। जीनोन सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, पर ऑक्सीजन तो काउंट नहीं होगा, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। फॉर्मूले में मोनोवेलेंट आता है, m स्टैंड्स फॉर मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर आता है sp3d2, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज sp3d2। XeOF4 के लिए कैलकुलेट करो तो लो, एक का मैं कैलकुलेट करके ही दिखा दूं। XeOF4 का कैलकुलेट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन नहीं लेना है, फ्लोरीन को लेना है। फ्लोरीन है मोनोवेलेंट, 4 मोनोवेलेंट एटम है। आंसर बनता है 6। 6 का मतलब sp3d2। इज इट ओके? तो हम यहां भी लिख देते हैं sp3d2। फिर है XeO2F2। लेट्स कैलकुलेट फॉर दिस ऑल्सो। XeO2F2। जीनॉन हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन लगी हैं, तो ये बन रहा है 5 बनने से बन गया sp3d। ठीक है, तो यहां मेंशन कर देते हैं sp3d। अब हाइब्रिडाइजेशन हमने सबका कैलकुलेट कर लिया। अब ज्योमेट्री देखते हैं। तो XeO4 तो बेटा टेट्राहेड्रल बनेगा ना, sp3 दिया है। XeF4 को देखो, XeF4 जीनॉन इज कमिंग आउट टू बी, XeF4 के अंदर जो जीनॉन है वो sp3d2 है। आपके पास 2 लोन पेयर आएंगे क्योंकि आपके पास 6 एटम नहीं है, सराउंडिंग एटम सिर्फ 4 हैं आपके पास। तो 4 पहले फ्लोरीन लगाओ, ऑक्टाहेड्रन बना रहे हैं हम, बट पूरा रेगुलर ऑक्टाहेड्रन बन नहीं पाएगा क्योंकि 2 जगह पे लोन पेयर है। एज अ रिजल्ट सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को देखना है जब ज्योमेट्री देखी जाती है। जब आप मॉलिक्यूल का शेप देखते हो सिर्फ आप बॉन्ड पेयर्स को देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर जैसा दिख रहा है। ये 4 बॉन्ड देखने आपने, ये 4, बस लोन पेयर्स को नहीं देखना। हाइब्रिडाइजेशन इज डिसाइडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, बट ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली, सो इट इज स्क्वायर प्लेनर। इसी तरह हमारा आंसर तो आ गया, प्लेनर बोला था ना, XeF4 आंसर है, बट पहले C और D ऑप्शन चेक कर लेते हैं। C ऑप्शन पे आइए, XeOF4 जीनॉन
HCOF4, इसके लिए बेटा आ रहा है हमारे पास sp3d2, पर 6 सराउंडिंग एटम नहीं है। सराउंडिंग एटम आपके पास 5 हैं, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन्स। तो ऑक्टाहेड्रल में डबल बॉन्ड से जोड़ दो आप 1 ऑक्सीजन को, बाकी जगह पे फ्लोरीन्स, बट 1 पोजीशन विल बी स्टिल लेफ्ट, वहां पे लोन पेयर आएगा। ये भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं बन पाया, इस ज्योमेट्री को स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। फिर एक और है XeO2F2, डी ऑप्शन कर लेंगे अब। दिस वाज फॉर XeOF4, नाउ XeO2F2। इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी तो sp3d आ रही थी। sp3d क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। जीनॉन एंड एक्सियल पोजीशन पे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, बाकी पोजीशंस पे ऑक्सीजन और एक जगह पे लोन पेयर। तो स्क्वायर प्लेनर तो सिर्फ एक ही बना। इसको आप लिख सकते हो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ये सीसॉ के जैसा दिख रहा है, जैसे SF4 होता है वो भी सीसॉ होता है, ये भी सीसॉ है। तो आंसर बनता है बेटा बी ऑप्शन। प्लेनर बोला था, प्लेनर में स्क्वायर प्लेनर का आंसर हमने दे दिया, और तो कोई प्लेनर आया ही नहीं। टेट्राहेड्रल तो प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल तो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। गॉट इट। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमोस्फियर। 4 नोबल गैसेस दिए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। और एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस क्या है? देखो सारी नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, बट वॉल्यूम उनका सिर्फ 1% से भी कम होता है। आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट, आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन इज नॉट प्रेजेंट इन एयर, याद रखना है, नॉट प्रेजेंट इन एयर। Other noble gases are present but not radon. 1% by volume they are present in air. All noble gases को combine करके 1% of volume of air are occupied by noble gases, but उसमें भी radon missing होती है, ये बात याद रखनी है। और most abundant कौन रहेगी? argon. Most abundant is argon. As a result आपका आंसर बनता है C option. Clear? Coming to the next most question है, noble gas which is most soluble in water. वाटर में ज्यादा soluble noble gas कौन सी है? You are given xenon, argon, neon and helium. देखो बात ये है कि all noble gases are sparingly soluble in water. They are not much soluble in water. ज्यादा बॉन्ड तो ये बना ही नहीं सकते, पोलर नहीं है, सब नॉन पोलर एटम्स हैं, सो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो भी ठीक से वंडरवॉल बॉन्ड बना लेगा, वंडरवॉल इंटरेक्शन बना लेगा, वो टू सम एक्सटेंट सॉल्युबल रहेगा, बाकी बहुत कम सॉल्युबल रहेंगे। सो आपको पूछा था मोस्ट सॉल्युबल, आंसर बनता है बेटा ए ऑप्शन, बिकॉज solubility of a gas is dependent upon the magnitude of van der Waal interactions. van der Waal interactions किस में ज्यादा हैं? van der Waal interaction उसी में जाना है जिसका मास ज्यादा है। सो हायर मास किसका है? जीनॉन का। आंसर बना ए ऑप्शन, ये मोस्ट सॉल्युबल रहेगी। नेक्स्ट इज यू आर गिवन few compounds of xenon in XeF2, XeF4, XeF6. Number of lone pairs on xenon. What is to be calculated? Lone pairs का नंबर निकालना है। 3 कंपाउंड दिए हैं, हम क्या करेंगे? हम ज्योमेट्रीज ड्रॉ करते हैं। XeF2, यूज द रिलेशन टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। आपके पास आंसर sp3d आएगा। ये बेटा लीनियर होता है, इसमें दोनों फ्लोरीन ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में एक्सियल पोजीशन पे आ जाती हैं। Other 3 positions are occupied by the lone pairs. As a result, ये लीनियर बन गया, इसमें 3 लोन पेयर हैं। XeF2 बना दिया, नेक्स्ट बनाना है XeF4। ये तो अभी अभी बनाया ही था लास्ट क्वेश्चन में। sp3d2, राइट? ये स्क्वायर प्लेनर,
इसमें 2 लोन पेयर sp3d2 आ रहा है, तो 2 पोजीशंस लोन पेयर की हैं और बाकी बॉन्ड पेयर आर 4 इन नंबर। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन ने बोला कितने कितने लोन पेयर्स हैं वो काउंट करो। अगला मॉलिक्यूल XCF6, हमारे को 3 मॉलिक्यूल्स दिए थे, ये बेटा आएगा sp3d3। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 फॉर जीनॉन एंड 6 आर दी मोनोवेलेंट एटम, 7 आ रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 मतलब sp3d3। पर एक जगह लोन पेयर आएगा क्योंकि 7 फ्लोरीन्स तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जीनॉन एंड वी हैव फ्लोरीन्स अटैच्ड, ऑक्टाहेड्रन बना के एक जगह पे लोन पेयर लगाना है, बाकी सब जगह पे फ्लोरीन्स हैं। 6 फ्लोरीन्स आर अवेलेबल टू यू, 1 position is occupied by the lone pair. As a result, this is distorted octahedron. ये बना था स्क्वायर प्लेनर, XCF4 स्क्वायर प्लेनर था, XCF6 था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन एंड XCF2 इज लीनियर। तो लोन पेयर्स अब काउंट कर लो। XCF2 में 3 लोन पेयर आ रहे हैं, XCF4 में 2 आ रहे हैं, लास्ट वाले में 1 ही लोन पेयर आ रहा है। तो हमारा आंसर फिर क्या बना? आंसर इज डी ऑप्शन, लोन पेयर्स आर 3, 2 and 1. XCF2 very important structure, linear. Apart from having hybridization sp3d, it is not trigonal bipyramid because 3 positions are occupied by lone pairs. So next question on noble gases. Which noble gas was first discovered on Sun and then on Earth? Helium, neon, argon, xenon, 4 options are given. कौन सी नोबल गैस है जो सन की सरफेस पे पहले डिस्कवर हुई? इट इज हीलियम। हीलियम कैसे? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस and helium is produced in and lot of energy. Nuclear fusion of hydrogen takes place inside the sun. So helium पहले सन पे डिस्कवर हुई थी, बाद में ये अर्थ पे डिस्कवर हुई। तो आपका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, मेटीरियोलॉजिकल बैलून्स फिल करते हैं हम हीलियम के साथ। हीलियम लाइट इन वेट गैस है, बट सबसे पहले ये सन पे डिस्कवर हुई है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बार्टलेट। नोबल गैसेस के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा बार्टलेट ने डिस्कवर किया था, कंपाउंड प्रिपेयर किया। तो पहला नोबल गैस कंपाउंड उसने क्या XeO3 बनाया था या XePtF6 या बाकी 2 ऑप्शंस? देखो क्या डिटेल है बेटा। O2 एंड PtF6 के बीच में रिएक्शन हुआ एंड कंपाउंड बना O2PtF6, मतलब कि ये पॉजिटिव और ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव। यहां से बार्टलेट ने एक क्लू निकाला कि O2 एंड xenon दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन सी 2 गैसेस? xenon का और O2 का। पहले तो ऐसे ही समझा जाता था कि नोबल गैसेस के कंपाउंड नहीं बनते, बट जब ये कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ O2PtF6, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी डिस्कवरी के बाद ये एक क्लू मिला कि O2 और xenon का क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है, इट मीन्स xenon भी फिर कंपाउंड बना सकती है। तो बार्टलेट ने ये सिंथेसिस करके दिखाया, साइंटिस्ट का नाम बार्टलेट था। Xenon was made to react with PtF6 and this complex was produced. Xenon carries a positive charge, PtF6 पे negative charge है। तो आपके पास फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड वाज दिस। तो नोबल गैसेस की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ऐसा समझा जाता था कि नोबल गैसेस के कंपाउंड बनते नहीं है, हीलियम नियोन के तो अभी भी कोई कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए कभी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे कंपाउंड बनता कैसे है? वैलेंस शेल तो कंप्लीट है हर नोबल गैस का, बट इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है टू दी हायर ऑर्बिटल। जब वो जंप करेगा
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एज अ रिजल्ट फर्स्ट कंपाउंड की इंपॉर्टेंस है, वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सो दिस वाज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस एंड देयर कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, formation of this complex O2 plus PtF6 minus is the basis of formation of xenon fluoride। अभी हमने डिस्कस किया। This is because O2 and xenon have comparable sizes, or they are gases both of them, or they have comparable ionization energies, or they have comparable electronegativities। क्या रीजन है? तो अभी मैंने बताया आपको फॉर प्रीवियस क्वेश्चन कि O2 एंड xenon का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होता है, और जब O2 ने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो O2 ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इस कॉम्प्लेक्स में, आप देख रहे हो O2 की जगह O2 प्लस हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो xenon भी इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। तो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ट्राई किया गया, xenon was made to react with PtF6 की O2 रिएक्ट कर रही है तो xenon भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम है। तो हमें रीजन देना था, बिकॉज बताना था कि क्यों बन गया कॉम्प्लेक्स। आंसर इज दे हैव सेम आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ही लेंगे ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। O2 प्लस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो xenon को भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, xenon कंपाउंड्स के ऊपर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ xenon कंपाउंड इज नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल ढूंढना है। xenon के बेटा एनसीईआरटी बुक में xenon कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। पी ब्लॉक के लास्ट पेज पे एनसीईआरटी बुक में रिएक्शंस गिवन है, वही रिएक्शंस यहाँ ऑप्शंस में दिख रहे हैं, बट हमें ये देखना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। विच इज नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल मीन्स नॉट स्पॉन्टेनियस, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो ए ऑप्शन में दिया है XeO3 प्लस HF will give XeF6 and water S। ये ए रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है नोट करो, XeF6 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। XeF6 जब वाटर से मिलता है तो ये हाइड्रोलाइज होके XeO3 बनेगा और HF बनेगा। अगर मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 3 मोल वाटर इज रिक्वायर्ड एंड 6 मोल ऑफ HF। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन तो ऑपोजिट लिखा है ना, ए ऑप्शन में जो प्रोडक्ट बना दिया अगर वो बनता है तो फिर XeF6 को वाटर के साथ मिक्स होके हाइड्रोलिसिस हो जाता है और फिर रिएक्टेंट वापस आ जाएगा। ए ऑप्शन का जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि XeF6 गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और आपका ए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बी रिएक्शन देखो, बी रिएक्शन में XeF4 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। XeF4 में xenon इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है बिटवीन xenon 0 एंड xenon 6। क्या रिएक्शन बना? XeF4 जब वाटर से हाइड्रोलाइज होगा, ये हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में आते हैं। दे विल गिव xenon एंड XeO3। xenon +4 से xenon 0 एंड +6 बन गया एंड HF एंड O2 तो साइड प्रोडक्ट्स आएंगे। इसी तरह सी ऑप्शन क्या है? XeF2 प्लस वाटर। XeF2 में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हाइड्रोलिसिस दिखाया जा रहा है। XeF2 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस, देखो रिएक्शन, XeF2 वाटर के साथ जब हाइड्रोलाइज करेगा तो बनेगा XeO2, बट ये स्टेबल नहीं है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, ये स्टेबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ब्रेक हो जाएगा बिटवीन xenon एंड O2, और HF तो साइड पे आना ही था, HF वॉज द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सी रिएक्शन भी ठीक है, XeF2 का इस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है। डी रिएक्शन इज XeF6 प्लस RBF इज गिवन। XeF6 बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन? xenon हेक्साफ्लोराइड। XeF6 विल गेन 1 फ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो आपका डी रिएक्शन में क्या दिया था कि RBF वॉज गिवन। XeF6 विल कंबाइन विद RBF, यू विल गेट
RbXeF7 तो कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये भी फिजिबल है। कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है? ए ऑप्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि ए में तो रिवर्स रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होते हैं जीनोन के सब फ्लोराइड्स के। आपने देखा ए ऑप्शन को अगर रिवर्स करो तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस होगा, बी में XeF4 का, सी में XeF2 का हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ जीनोन कंपाउंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेसिस पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए, right? So we have taken up, we have discussed the noble gases and halogens, I mean to say group 17 and group 18 दोनों आपने डिस्कस किए, जिसमें कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस और हेलोजेंस के अंदर प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हैव क्वेश्चंस ऑन द कंप्लीट समरी ऑफ पी ब्लॉक। चारों ग्रुप्स के क्वेश्चंस आएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, 15th group, 16th, 17th and 18th group. So that video is from NCERT exemplar problems. So till the time you keep practicing, revising, revise all the 4 groups of P block, then only you will be able to do questions from NCERT exemplars, right? Hope you are taking benefits from our courses. Thank you and bye bye.